Good morning, everyone. We were discussing the term topic pressure in fluid. So, what is the pressure? Pressure is thrust acting on per unit area. Thrust is a force, it is the perpendicular force to any surface. Now, so water is a liquid. When we pour some water on a table or any surface, it flows. क्या होता है? वाटर लिक्विड है. आप अगर इसको किसी टेबल पे या सरफेस पे पोर कर देते हो तो वो फ्लो होने लगता है, बहने लगता है. एयर इज अ गैस एंड एयर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. So, the substances which can flow easily are called fluids. Okay, जो कुछ भी सब्सटेंस जो easily flow कर सके उनको हम बोलते हैं fluids. So we can say that all liquids and gases are fluids. Now, water and air are the two most common fluids, and we have studied that the solid exert pressure due to their weight. Suppose here is a metallic box kept on a surface. So this metallic box exert a force on this surface, and what will be the force? That particular force is its weight. So this the mass of this metallic box, let's say it is m, and the acceleration due to gravity which is acting downward is z. So the weight will be mg. So that much force exerted by this box on this surface, that is the weight. And suppose let a is the area of contact. So क्या हो रहा है, ये बॉक्स एक पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे कांटेक्ट है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया के कांटेक्ट में होगा. तो देखो ये वेट, दैट इज़ द फोर्स लगा रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में. सो वेट पर यूनिट एरिया, अ वेट that is the force acting on area is nothing but pressure. That's why solid exert pressure due to their weight. Like solid, liquid also have weight. Means liquid का भी क्या होता है, it has mass. So basically it also have the weight. They so liquid exerted pressure. Suppose करो this is the any container filled with liquid, and this liquid has mass, let's say m, and acceleration due to gravity will be z. Okay, acceleration due to gravity is z. So this is the liquid, it is the fluid. But in fluid, liquid or gases, it consists of molecules, solid, liquid, gases. All material consists with molecules. But in case of gases, the molecule moves randomly. Okay, in all directions. Basically, they move randomly. So they can apply, these molecule can apply force in all direction. Means this fluid, whatever it is, liquid or gas, it exerts pressure in all direction because of the random motion of its molecules. So it can apply a force uh, on sideward, downward, upward. So this pressure will be upward, downward, even upward, downward and sideward. So yes, we know that pressure is a scalar quantity. Means
it hasn't any direction. So basically, we can say that the molecules or liquid can apply a force in all direction. In solid, the weight is in downward direction, but in a fluid, the force is all in all direction. Okay. Now, let's take an example. Suppose if we lift a stone that lying at the bottom of a pond. क्या है, एक स्टोन है सपोज करो, और वो क्या है, एक तालाब के अंदर है. So it appeared to be light as long as it is being lifted inside the water. But as soon as the stone is lifted out of water into air, the same stone feels to be much heavier. Basically, whenever you lift any object inside the water, it appears to be light. Okay? मतलब कि जब भी हम पानी के अंदर कोई भी चीज़ को उठाना चाहते हैं ना, तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट हमको लाइट लगता है, हल्का लगता है. कब तक? जब तक वो पानी के अंदर रहे. पानी के बाहर जैसे ही हम उसको निकालेंगे, वो हमको कुछ हैवी लगता है. सो ऐसा क्यों होता है? सो एज वी नो दैट fluid, liquid or gases, whatever it is, exert pressure in all direction. अगर यहाँ पे हम एक कोई ऑब्जेक्ट को इनमर्ज कर देते हैं, डुबो देते हैं, डिप कर देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है. इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है. ओके. सो किसी भी फ्लूइड की ये टेंडेंसी रहती है कि अगर आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दो, तो क्या होता है, वो हल्का लगने लगता है. ठीक है. बेसिकली ये क्यों लगता है, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं बोयांट फोर्स. बोयांट फोर्स, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है. So it is the upward force acting on a object immersed in a liquid. It is also known as upthrust. This buoyant force is also known as upthrust. And this tendency to apply a upward force of thrust whenever you immerse any object in a liquid, so this tendency or this property is known as buoyancy. That is the buoyancy. सो ये लिक्विड में भी होता है, ये गैसेस में भी होता है. ठीक है. ये एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी फ्लूइड में अगर आप ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हो, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बुआयंट फोर्स लगता क्यों है, वाई दिस बुआयंट फोर्स कम इनटू प्ले, एग्जिस्टेंस, ये आया कैसे. देखो, as we know that liquid exert pressure,
So let's say a container filled with liquid, a fluid. Now let's consider this container filled with a liquid. Now let's say we'll immerse a mug or any object, let's say mug. ठीक है, हम एक मग इसमें डुबो देते हैं. नाउ as we know that the liquid exerted pressure in all direction means this water exert force on every direction, in sideways, upward and downward. सभी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है. ठीक है, क्यों? वाटर के मॉलिक्यूल्स जैसे पता है ना, कोई भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रेंडमली मूव करते हैं, इसीलिए फोर्स लगा सकते हैं वो. अब देखो, अगर सपोज करो ये फोर्स हर जगह इक्वल होता ना, तो क्या होता है, हमको मग का जो वेट है वो एयर में भी उतना दिखाई देता और पानी के अंदर में भी उतना ही हमको पता चलता. अब ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे यहाँ पॉइंट देखो, यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. अब देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी में हमको प्रेशर मेजर करना है. ठीक है, अब देखो पॉइंट ए में कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा यहाँ पे, तो कितना प्रेशर होगा, जितना यहाँ पे जितना वाटर है, कितना वाटर है यहाँ पे, इतना वाटर का जो वेट होगा वही ना यहाँ पे होगा. ठीक है, उतना ही फोर्स यहाँ पे लगेगा. तो देखो यहाँ पे इतना वाटर का वेट एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया प्रेशर पी है. बी पे देखो, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा. अब देखो यहाँ पे वाटर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया. ठीक है, पानी यहाँ पे क्या ज़्यादा है, तो देखो इतना पानी का मास आप लोगे तो प्रेशर इस जगह पे क्या होगा, प्रेशर इन द बॉटम बी ऑफ द मग इज एट ग्रेटर डेप्थ इन वाटर, ज़्यादा डूबा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा. ये चीज़ ध्यान दो, जितने डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर हमारा एक्सर्ट होता है. ठीक है, उतना प्रेशर बढ़ते जाता है. सो देखो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे देखो बी पी बी, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है. अब प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, ग्रेटर होगा कंपेयर टू दिस वन. अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा यहाँ पे भी प्रेशर होगा, तो देखो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल है इस डायरेक्शन में. साइडवे में जो भी प्रेशर लग रहा है यहाँ पे वो इक्वल है यहाँ से. बट देखो यहाँ पे बॉटम में प्रेशर ज़्यादा है और टॉप में प्रेशर कम है, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना. देखो प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पे देखो फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है ये ग्रेटर है क्योंकि प्रेशर ग्रेटर है. यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हमारा कम है तो यहाँ पे जो फोर्स भी लग रहा है वो कम है. तो देखो यहाँ ये क्यों हो रहा है, द प्रेशर एक्सर्ट बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ. ध्यान देना ये क्या है, प्रेशर exerted by a liquid increases with डेप्थ. गहराई के साथ क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होते जाता है. एंड एक्ट्स इन
ऑल डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का बात कर रहे हैं तो यहाँ फोर्स का बात कर रहा है, क्योंकि प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, हम लोग स्केलर क्वांटिटी लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे डेप्थ, यहाँ पे देखो पॉइंट बी ज़्यादा डेप्थ में है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो फोर्स यहाँ पे ग्रेटर होगा। अब देखो इधर में जो लगने वाला फोर्स है क्या है, एक यहाँ पे प्रेशर जो लग रहा है वो है, और वेट यहाँ पे जो लग रहा है। बट अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर है, यहाँ पे देखो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है ये ग्रेटर है, इसीलिए क्या होता है इसके वेट को कुछ कैंसिल कर देता है। ये वेट भी क्या है, फोर्स। तो देखो एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो उसको कैंसिल कर देता है। सो एज वी लोअर एंड द sorry, as we lower an object into liquid, the greater upward pressure of liquid will be। जितना ऑब्जेक्ट को आप नीचे डुबाओगे उतना ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, so as we lower an object into liquid, the greater upward pressure of liquid underneath it provides an upward force, and this force is buoyant force। ठीक है, जितना डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा और उतना ही क्या हो जाएगा, हमको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज द बुओयंट फोर्स। So as we discussed that the buoyant force, the upward force acting on an object immersed in a liquid is called buoyant force, and it is also known as upthrust। अब कॉजेज हम देख लिए, क्यों प्रेशर क्या होता है, अगर कोई लिक्विड है जितना डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर क्या होता है हमारा इंक्रीज करता है। ओके, सो व्हेन अ मग इनसाइड द वाटर द प्रेशर फ्रॉम द साइड्स आर इक्वल। हमने मग, देखो यहाँ पे मग डुबाया, या साइड के जो प्रेशर है, ठीक है, साइड से जो प्रेशर लग रहे हैं वो क्या होंगे, इधर से भी जितना प्रेशर लगेगा इधर से भी उतना प्रेशर लगेगा, और वहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। बट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द मग इज मोर ड्यू टू मोर डेप्थ ऑफ वाटर। क्या है, देखो यहाँ बॉटम में लगने वाली जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगी टॉप से, क्योंकि देखो बॉटम जितना ज़्यादा डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है। एट द टॉप ड्यू टू लेस डेप्थ ऑफ वाटर, ऊपर की फोर्स क्या है, कम होगी क्योंकि डेप्थ कम है, और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगी क्योंकि प्रेशर यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है। सो द डिफरेंस इन प्रेशर एग्जर्ट नेट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। क्या है यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया, इधर देखो, इधर नीचे की ओर फोर्स लग रही है कम, नीचे यहाँ पे देखो प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज़्यादा, तो यहाँ पे फोर्स नीचे की ओर लगने वाली फोर्स कम, ऊपर की ओर फोर्स लगना वाली जो ऊपर की ओर फोर्स लग रही है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। So this difference in pressure exert net upward force and called upthrust or buoyant force. So the mug is usually made of plastic that is the lighter than the water and it push up due to its upthrust। देखो इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये मग है ये प्लास्टिक की बनी होगी तो इसका वेट बहुत कम होगा और यहाँ पे बुआंट फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो सकता है, मग ऊपर आ सकता है। बट ये अगर सपोज कर लो मेटालिक मग होता तो इसका वेट ज़्यादा होता और ये इस बुआंट फोर्स को ओवरकम कर लेता। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो में इसको देखेंगे हम लोग। ना अब देखो जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था, सो ये एग्जांपल में क्या है, एक रबर बैंड हमने लिया है। रबर बैंड का क्या फीचर होता है कि रबर बैंड को आप स्ट्रेच करो, खींचो, ठीक है, फोर्स लगाओ तो ये क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, खींच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा।
तो सपोज करो हमने एक रबर बैंड लिया है, इसमें एक मास को हमने होल्ड कर दिया, ठीक है, टाई कर दिया है। अब ड्यू टू इस ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स वेट, इट एक्सर्ट अ प्रेशर इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रबर बैंड खिंच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। बट इसी को देखो, इसी को हम अगर इसी तरह रबर बैंड में हम एक वही सेम सेम स्टोन को यहाँ पे टाई कर देते हैं और इसको वाटर में, ठीक है, इमर्ज कर देते हैं, तो देखो इस बार भी वेट तो उतना ही है, बट ये रबर बैंड को क्या कर रहा है, कम स्ट्रेच कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को थोड़ा सा कम कर दे रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एयर पे, ठीक है, एयर में इसको मेज़र किया, और ये इसका जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट है वो 60 न्यूटन है, ठीक है, 60 न्यूटन है। अब क्या किया हमने ना, हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, और इस कंटेनर में लिक्विड फिल किया है, और देखो कंटेनर में लिक्विड यहाँ तक फिल किया है, और यहाँ पे सपोज करो एक होल है, होल कर दिया, उसमें एक नल हमने फिर से एक पाइप यहाँ पे बैठा दिया। अब ध्यान दो कि हमने लिक्विड को इतना फिल किया है कि अगर यहाँ पे छोटा सा भी छोटा पार्टिकल आए तो लिक्विड यहाँ से ओवरफ्लो कर जाए। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का अपना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ऑब्जेक्ट उसका कोई वॉल्यूम होगा। अगर आप लिक्विड में उसको डुबाव दोगे तो उतना ही वॉल्यूम या उतना ही जो स्पेस वहाँ से वो डिस्प्लेस कर जाएगा, हट जाएगा, है ना। देखो ये बॉल क्या है, ये बॉल इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो इतना ही लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लिक्विड को पूरा कंप्लीटली फिल किया था यहाँ तक, और जैसे बॉल को हमने यहाँ पे रखा, ये इसका जितना भी डायमेंशन है, वॉल्यूम है, तो उतना ही लिक्विड यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। और हमने यहाँ पे क्या किया, इसको दूसरे कंटेनर में हमने जमा कर लिया। अब देखो जब हमने यहाँ पे देखो, ये हमारी सपोज कर लो वेटिंग मशीन है यहाँ पे, जो वेट को मेज़र करती है, तो यहाँ पे 60 था, और जब हम यहाँ पे लिक्विड में इसको इमर्ज किए तो हमारा जो वेटिंग स्केल है वो रीडिंग दिया हमको 50 न्यूटन। मतलब कि यहाँ पे 10 न्यूटन ख़त्म हो गया, कम हो गया। ये 10 न्यूटन कहाँ गया, कि बिकॉज सपो यहाँ पे एक अपवर्ड थ्रस्ट होगा, बॉयंट फोर्स होगा, जो अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाएगा, तभी ना हो सकता। देखो 60 न्यूटन, और यहाँ पे बॉयंट फोर्स 60 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा 10 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, इट विल गिव यू 50 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन, 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि 60 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और 10 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे 10 न्यूटन अपवर्ड फोर्स या थ्रस्ट बोल लो या बुओयंट फोर्स है वो लग रहा है। और यहाँ पे जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, अगर आप उसको मेज़र करोगे ना, तो मेज़र करोगे तो वो 10 न्यूटन ही होगा। मतलब कि जितना बुयांट फोर्स लग रहा है उतने ही वेट का वाटर भी डिस्प्लेस हो रहा है। आप कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्ज करते हो, तो यहाँ से इसके वॉल्यूम के कारण लिक्विड डिस्प्लेस होगी। अगर उस डिस्प्लेस लिक्विड को आप मेज़र करोगे, उसका वेट को मेज़र करोगे, तो वो वेट उतना ही होगा जितना कि उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बुयांट फोर्स, एंड दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, when a solid object is immersed or dipped in a liquid, an upward force, a buoyant force act on that particular object, and the magnitude of this buoyant force is given by Archimedes' principle, which says that when an object is
immerse in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to weight, the weight of liquid displaced by the object, means the buoyant force acting on a object which is immersed in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by that object. And it is very useful principle. So we'll discuss this principle in further classes. आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं. Bye everyone.